سیراب کرنے کے لیے دیامر ڈیم کے لیے اپنی زمینیں وقف کر دی، لیکن ان کی گریڈ 1 کی نوکری کے لیے پنجاب سے سندھ سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ کوئی چے گویرا اور نیلسن منڈیلا نہیں ہے، انہوں نے بھی کوئی دفتر سے جس طرح حاجی گلبر آ کے وزیر اعلیٰ بنا ہے، یہ بھی اس دفتر سے بنے ہیں۔ آپ گلبر کے ذات پہ تنقید نہیں کرو، سسٹم کو سمجھو، سسٹم پہ تنقید کرو۔ رات کے لیے بھیک مانگتے رہے، ہمارے وسائل ہم سے یہاں سے یہ وسائل یہ تمام جتنے بھی سبسڈی ختم کرے، لیکن یہاں سے دفاع ہو کے نکل جائے۔ ہم اپنا علاقہ خود سنبھال سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ تمام علاقے کی لیزیں اس علاقے کے یونین کونسل کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی مطلب قومیتیں ہوں گے، ان کے نام پر کرو، تو ہر مطلب قوم، ہر وہاں علاقے کا بندہ جا کر اپنے لیے انویسٹر لائے گا اور کام کرے گا، ہم آپ کو دے دیں گے۔ تمام مذاہب کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور آج یہاں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ دوستو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی میرا گلگت، میرا اسکردو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہے۔ آج بھی ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، آج بھی ہماری معدنیات، آج بھی ہماری جنگلات پر قبضے ہو رہے ہیں۔ میرے دیامر کے عوام نے، چلاس والوں نے پاکستان کو سیراب کرنے کے لیے دیامر ڈیم کے لیے اپنی زمینیں وقف کر دی، لیکن ان کی گریڈ 1 کی نوکری کے لیے پنجاب سے سندھ سے لوگ آ رہے ہیں۔ سوس بارڈر ہمارے زمین پر، اور اس کا قبضہ آج NLC کے پاس ہے۔ روڈ FW بناتی ہے، مواصلات پر SCO ہے، نوکریوں پر اسلام آباد سے آتے ہیں، ہوٹلز اسلام آباد والے، سندھ والے، پنجاب والے بناتے ہیں، تو بلتستان، گلگت بلتستان والے کہاں جائے؟ ہمیں بتایا جائے۔ ہمیں ہوٹل بنانے کے لیے 10 NOC چاہیے، لیکن رمضہ ہوٹل والے کو کوئی NOC نہیں چاہیے۔ راتوں رات ہوٹل بنتے وہاں راتوں رات ہوٹل بنتے۔ عوام کو، میرے یوتھ کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے 20 سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں کروایا جا رہا ہے۔ ایک افضل سگری سے پورا سندھ چلایا جا سکتا ہے، ایک GM سکندر سے پورا پنجاب چلا سکتا ہے، لیکن میرے گلگت بلتستان کے سپین احمد کو، عثمان کو، صفدر کو ہوم سیکرٹری نہیں بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے۔ ہمیں گلبر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مہدی شاہ اسکردو سے تعلق رہتے تھے، پہلا وزیر اعلیٰ تھا، ہم نے مہدی شاہ کو نہیں بخشا۔ ہم نے مہدی شاہ کے گھر کے سامنے ان کو مردباد کے نعرے لگائے۔ ہم نے حفیظ کو نہیں بخشا، ہم نے خالد خورشید کو نہیں بخشا، کیونکہ ہمارے اختلافات اس کرسی سے ہے جس پر بندہ بیٹھا جاتا ہے۔ آج ہم حاجی گلبر کی مخالفت کریں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حاجی گلبر شیعہ ہے، سنی ہے، چونکہ مہدی شاہ شیعہ تھا، سید تھا، اس کے باوجود ہم نے مہدی شاہ کو مردباد کے نعرے لگائے، اس کے گھروں کے تک، اس کے ناموس تک گئے۔ تو ہم آج حاجی گلبر پر تنقید کریں گے، ہم اس کابینہ پر ہماری تنقید ہوگی۔ پیپلز پارٹی جن کا دعویٰ تھا کہ ہم گلگت بلتستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے، آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ سبسڈی کے خاتمے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے سہولت کاری کی ہے۔ مجھے تعجب ہے غلام احمد صاحب پر، آپ تو خوراک کے وزیر ہو، آپ گلگت بلتستان کو اندھیرے میں دے کر امریکہ میں عیاشیاں کرے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ غلام احمد، تمہیں ووٹ غزر کے عوام نے دیا ہے، کسی نواز شریف نے، کسی لاہوریوں نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ امجد الرقیب، آپ کو ووٹ اگر دیا ہے تو امبری کے عوام نے دیا ہے۔ شہزاد آغا، آپ اگر اسمبلی میں ہیں تو بلتستان کے عوام کی وجہ سے۔ حفیظ الرحمان آج اگر گلگت بلتستان کا سابق وزیر اعلیٰ ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کی وجہ سے۔ خالد خورشید اگر اسمبلی میں یا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، اس کو بھی ووٹ گلگت بلتستان کے عوام نے دیا ہے۔ لہٰذا آپ دلاور بھٹو کا یا عمران خان کا، نواز شریف کا ٹی سی کرنا چھوڑ دے، گلگت بلتستان کی نمائندگی کریں۔ میں دوستو، تمام احتجاجوں کا مرکز پہلے اسکردو ہوا کرتا تھا، اب ہماری خواہش ہے، بلتستان والوں کی خواہش ہے کہ اس کا آغاز دیامر سے ہو۔
इस तहरीर का आवाज़ दियामर से हो। मैं चेयरमैन फिदा से गुजारिश करता हूँ, आप दियामर के हमारे जिम्मेदारान से बात करें। हम पहले चिलास में दारे तांगेर में एक जलसा करेंगे, फिर बेशक हम गजरी जाएंगे, हम हुंजा नगर जाएंगे, फिर हम आपको बल्तिस्तान ले जाएंगे। इस तरह हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को वार्म अप करेंगे, इनको हम गरमाएंगे। जब इस तरह हमारा 8-10 दिन गुजर जाएंगे, इसके बाद हम फैसला करेंगे कि धरना कहाँ दिया देना है, रोड कहाँ जाम करना है, किस तरह करना है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी ख्वाहिश है, बल्तिस्तान वालों की ख्वाहिश है कि इस एहतजाज का आगाज मरकज दियामर से शुरू हो। लिहाजा इस्लामाबाद के हुक्मरान, आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 70-75 साल में आपने कुछ भी नहीं दिया, लिहाजा आपका ये जो फैसला है हम नहीं मानते हैं। कभी तुम मोहम्मद दादा को पहाड़ देते हो, कभी तुम पिस्तान दादा को देते हो, कभी तुम अपने बेटे को देते हो, कभी पैसे खा के देते हो, कभी दरिया फरोख्त करने लगे। इधर तुम बिजली पर घर बनाओ और बिजली फरोख्त करो, आने वाले वक्तों में 100 रुपये का बिजली बनेगा 1 यूनिट। ये इसलिए बिजली हमें अंधेरे में रखते हैं, हमें भूखा रखते हैं। हमारा गिला है यहाँ के लोगों को खुद मुख्तार करके, बाख्तियार करके इस्लामाबाद के हुक्मरानों को चाहिए, इनका अपना सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि इनको दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकल के बात नहीं करेंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इन्होंने दस्तखत किया है, उसके मुताबिक करें। ये लॉलीपॉप न दे दे। बाकी रहा सवाल, हम मिल के इतफाक करके, 2 दिल यकशवत बिश्कनत कुहरा, 2 दिल एक हो तो जनाब बहुत बड़े फलसफी ने कहा है ये पहाड़ चीर के निकल सकते हैं। हम इतफाक करके बैठेंगे तो ये हुक्मरान, इनका दिल क्या है, पत्थर का थोड़ा है। ये चोरी करके, करप्शन करके, लकड़ी करके, ठीके लेके, अपने बंधुओं को भर्ती करके, कुछ भी ये इंतहाई बीमारियों में, शुगर में जाके परेशान हैं। हम इतने लोग मिल जाएंगे तो हमारा मसला है इत्तेफाक, दिल से मिलना है, दिल से बैठना है और पुरअमन जमहूरियत करना है, जाके बात करना है, हमने अकल से, दलील से। कोई लोग उकसाएंगे, लाओ कहेंगे फलान के दफ्तर को जलाएंगे, पिस्तान के दफ्तर को, कोई जलाओ गिराओ की जरूरत नहीं है। पुरअमन जाके हमने कहना हमारा हक इधर रख, बात खत्म। इसके लिए जगह जगह दौरों का जो हमारे साथियों ने सीनियर हमें यहाँ तजवीज़ दी है, मैं इत्तेफाक करता हूँ यहाँ तमाम अजला के अंदर ऑलरेडी पहले से कमेटियाँ बनी हैं, उनको गांव-गांव दौरा करना चाहिए, जहाँ कमेटियाँ नहीं है कमेटियाँ बनाना चाहिए। बना के मौसर तहरीक चलाएंगे तो ये सरकार मान लेगी। बाकी हमारी तरफ से मैं आज ये भी ऐलान करूँगा, जो हक अमजद एडवोकेट का है, हफीज का है, मेहदी शाह का है, मीर गजनफर का, पीर कमर शाह का, वो हाजी गुलबर का भी है। ये कोई चे गवेरा और नेल्सन मंडेला नहीं है। इन्होंने भी कोई दफ्तर से, जिस तरह हाजी गुलबर आके वज़ीर-ए-आला बना है, ये भी उस दफ्तर से बने हैं। आप गुलबर के ज़ात पे तनकीद नहीं करो, सिस्टम को समझो, सिस्टम पे तनकीद करो। ये सिस्टम आप लोगों को लूट रहा है, इस सिस्टम के कुल पुर्जे हैं ये सारे, कोई चे गवेरे नहीं है यहाँ। के साथ मैं जिंदगी में आया हूँ बाइसत, मैं एक्शन कमेटी का रुकन हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैं एक्शन कमेटी के लिए काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की, स्पेशल चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी बात की, हम इस पर मुतफिक है और इंशाल्लाह दियामर से आपने बताया और हम दियामर से इस इशू को, इस जलसे को दिखाएंगे। इसके अलावा ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो इशू है, इसमें मेन इशू मदनियात है। अनकरीब हमारे मदनियात भी हमसे जाने वाला है। कोई ये ना सोचे कि मदनियात शुमाली इलाके का, ये शुमाली इलाके का नहीं, ये हमसे जा रहा है। ये हमारे जो जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, ये जिस वक्त इख्तलाफ करते हैं, शिया सुनी, उसके बाद यशकुर रशीद का ये रंग दे रहा है, इलेक्शन लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, हार जीत के बाद वो सारे पार्क होटल के 2 नंबर या 3 नंबर कमरे में बैठकर इत्तेफाक करते हैं और इत्तेफाक के बाद फंड को आपस में तकसीम कर रहे हैं। अवाम को कुछ भी नहीं दे रहे, वो फंड आपस में तकसीम कर रहे हैं और बाहर आकर असम्बली में आकर दाएं बाएं आकर वो शोर शराबा करते हैं, शोर मचाते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और शाम को ये सारे मिल जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे ये इशू पे बहस करने चाहिए। मदीनात भी हमारा बहुत अहम इशू है, मदीनात अनकरीब हमसे जाने वाला है, ये आप सबको पता भी होगा और बाद में भी पता चलेगा। हर कोई पठान आता है, पंजाबी आता है, वो सारे इधर क्यों गिलगितियों को ठेका नहीं दिया जा रहा है, क्यों गिलगितियों को लीज नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये हमसे जाने वाला है।
किसी और ऐसी कंपनी को दे दें कि उस वक्त हमारे बच्चे भी उधर नहीं जा सके बद्रीनाथ के पहाड़ों पे। तो मैं आप लोगों को ये इस चीज़ पे इस इशू पे मैंने आप लोगों को बता दिया और एक्शन कमेटी वाले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इशू को भी उठाओ। तो ये गरीब आवाम का हक है, ये पंजाबी पठानों का हक नहीं, हमारा हक है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोग आ जाए, हम सारे त्यामर वाले तैयार हैं, इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करेंगे और बड़ी इज्जत के साथ आप लोगों को चलाएंगे। तो हमारे लेना इल्लल चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी फिदा हुसैन साहब, साबिक चेयरमैन एहसान अदकेट साहब, तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हमारे साथी पाकिस्तान साहब, हमारे कॉमरेड, सबको मेरी तरफ से सलाम हो। सलाम के बाद मैं एक अपने सीनियर साथी अब्दुल बशीर खान अस्तोल वाले की कुछ अशार हैं, वो अदीब भी हैं, शायर भी हैं, उनसे मैं अपने खिताब का आगाज़ करूँगा। अंधेरों से कहे तो ये सूरज का सफ़र है, अंधेरों से कहे तो ये सूरज का सफ़र है, कब दस्तरस से बाहर कोई इसकी फ़िक्र है, तुम आज हो कल और कोई होगा यहाँ पर, मत बोलो कि तारीख का लिखा मुकर्रर है। चंगेज़ व हिलाकू कभी कहते थे कि हमें, चंगेज़ व हिलाकू कभी कहते थे कि हमें, देखो तो सही आज कहाँ वो प्रोफर है, कोई रोक सका न कोई रोक सकेगा, हर जुल्म शब का बशर अंजाम साहर है। मोहतरम साथियों, मैं हमारे अवामी एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें इकट्ठे करने की सादत बख्शी। सबसे पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इसमें हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हम खुद कमज़ोर हैं, हम बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं, हम बहुत बड़े वफादार हैं। हमें हालात वाक़ियात दोस्ती उससे रखो जो सामने दोस्ती करने का अहल हो। अगर सांप से दोस्ती रखोगे तो वो डसता है, उसको जितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा आखिर में। इसीलिए हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 75 साल हो गए अभी तक अपनी बुनियाद को नहीं समझे। हम हुकूमत पाकिस्तान को समझो कि एक रिसीवर के तौर पे, जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा आज, वही जुल्म यहाँ पर भी हो रहा, ये भी एक फ़लस्तीन है। इसराइल को रूस ने पैदा किया, ले पालक की तरह अमेरिका ने उसको पाला। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने एक बकवास किस्म की माँ को हवाले किया हमें ले पालक के तौर पे, वो आज हमें पाल के हमें बड़ा करके वापस अपने पाँव पर खड़ा करके अपनी ज़मीन पर रखने की बजाय उल्टा हमें नोच रही है। तो वहाँ पर अब पाकिस्तान के हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर खुद कोई आईन नहीं है। वहाँ गरीब मेहनत कश फाकू तले दब रहा है, मटके का पानी भी उसको मैसर नहीं है। वहाँ पर भी अशराफिया, जनरल, सरमाएदार, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट उनकी वहाँ पर वो उनके लिए पाकिस्तान के अंदर सब कुछ सैराफ है, वह उनको मिलता सब कुछ, पाकिस्तान उन्हीं का है, गरीब लोगों का पाकिस्तान नहीं है। कि हम पाकिस्तान में 75 साल तक हम मजीद उसमें शामिल होने की बात करें। गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, यहाँ पर मसले कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मसले कश्मीर के साथ जुड़ा है तो जो हुकूक मुतनाज़ा कवानीन के हैं उसी तरह हमें हुकूक मिलना चाहिए। ये हमारे साथ आस पास रशिया भी हमारा हमसाया है, पाकिस्तान भी हमारा हमसाया है, मुल्क है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है। कल को कोई इंडिया के साथ हवाला करे, कभी चाइना के साथ, हम कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे। हम एक कौम है, हम एक कौम के तौर पर हम एक मुल्क की इज्जत से रहना चाहते हैं। हमारे अपना एक आइन होना चाहिए, आइनसाज असम्बली होनी चाहिए, हम खुद फैसले करें। हमारे वसाइल को लूट कर और वो हमें खैरात के लिए, हम कब तक खैरात के लिए भीख मांगते रहे। हमारे वसाइल हमसे यहाँ से ये वसाइल ये तमाम जितने भी सब्सिडी खत्म करे, लेकिन यहाँ से दफा होकर निकल जाए, हम जाने, हमारा काम जाने। हम भीख मांगते हैं या आप हमसे भीख मांगते हो। आप पता चला अफगानिस्तान के अंदर कहते अनपढ़ है वो नहीं चला, अब अफगानिस्तान उनसे आगे निकल चुका मैशियत में। यहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरे सारे जो मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं वो सारे रिटायर होने के बाद बाहर चले जाते हैं। सरमाएदार हो गया बाहर चला जाता है,
जागीरदार है, पैसा आ गया बाहर चला जाता है। ये खुद इस मुल्क के वफादार नहीं, तो हम उस मुल्क उस कचरे में जाके, उसमें गटर में जाकर हम क्या करें? खुदा के लिए उस अकल का नाखून ले लो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। आप लोग ये वफाकी और मजहबी जो पार्टियां जो गई रहनी है यहाँ पे, उनसे दस्तबरदार हो जाओ। जब तक उनसे दस्तबरदार नहीं हो जाओगे, उनसे आराइदा नहीं हो जाओगे, ये मेरा पैगाम बज़रिए सोशल मीडिया जाती है, आपके जरिए जाती है, जाए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। जब तक ये पाकिस्तान से आने वाले वफाकी हो, मजहबी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे अलग होकर अपनी पार्टियों को आप तरजीह नहीं दोगे, तब तक जिंदगी पर आप गुलाम होते रहोगे। वो अपने उन पार्टियों की यहाँ हुकूमत बनाएंगे और उन्हीं के जरिए आपके खिलाफ फैसले करेंगे। आज यहाँ बंदे खाने के लिए तरस रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है, और यहाँ पर हमारे लोग उन्हीं पार्टियों के जरिए अभी इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। लोग दड़ उन्हीं के मीटिंगों में जाते हैं, और यहाँ से लाड़काना जाते हैं, यहाँ से बनिगाला जाते हैं, जमान पार्क जाते हैं, लाहौर जाते हैं। क्यों जाते हो? वहाँ के लिए करोड़ों खर्चे करते हैं, यहाँ अपनी कौमी पार्टियों के लिए एक आना देने के लिए तैयार नहीं। तो यही फैसले होंगे हमेशा, कौम के लिए अपना अंदर एक जिगर पैदा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। आप सबकी खिदमत में अंजुमन इमामिया के सदर साजिद बेग साहब की तरफ से सलाम अर्ज़ है। वो चूँकि खुद इस महफिल को अटेंड नहीं कर सके, कुछ दूसरे जगहों में, कुछ दो जगहों में मीटिंग्स थी, उस वजह से उन्होंने मुझे हुक्म किया था कि वहाँ जाएं और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स वहाँ पे जमा हैं उनको सबसे पहले मेरा सलाम पहुँचा दीजिएगा। और सेकंड में हमारी जो पॉलिसी बयान पहले भी सोशल मीडिया के थ्रू या फर्दन आप सबको पता है, जो आप चाहते हैं वो हम सब चाहते हैं, जो हमारे बच्चे चाहते हैं, जो हमारे बच्चे चाहते हैं, आज हमें समझने की ज़रूरत है। हम जिस जगह पे जा रहे हैं, अभी भाई के दो चार अल्फाज मैंने सुन लिए, तो यानी दर्द है, गिली तो वो की हद गिनी, इस ज़मीन का बेटा होने की हद से, मसलन नुमाइंदगी अपनी जगह पर, लेकिन हम सारे सन ऑफ साइल हैं, हम इसी ज़मीन के बच्चे हैं। लेकिन इस ज़मीन, अपनी ज़मीन के ऊपर हम अमानतन कदम रख के बैठे, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और शायद हम अपने घर के अंदर ही किराएदार बन के हम बैठे हैं। तो हमें अपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जो दुनिया के लॉज हैं, जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर जो मामलात होते हैं, जो अवामी हकूक़ होते हैं, जो इंसानी हकूक़ होते हैं, जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी, आप जितने स्टेक होल्डर यहाँ जमा हैं, फ़र्द मैं किसी को नहीं जानता, या सबको मैं बाई फेस जानता हूँ, उर्दू के हिसाब से नहीं जानता, मेरे भाई हैं आप सब। तो इंशाअल्लाह ताला अंजुमन इमामिया गिलगित आपकी पॉलिसी बयान के साथ दामे दिरमे सुखने कदमे आपके साथ खड़ी। हमारे अकादमीन और हमारे कायदीन यहाँ पे मौजूद थे, ये जैसे भी हुक्म कर लेंगे इंशाल्लाह हम उस हिसाब से चलेंगे। बाकी ये अवामी एक इशू आया है, बड़ा इशू है गंदम सब्सिडी के, तो तांगिर से लेके बल्तिस्तान तक ये हम सब का मेन इशू है। तो इसी पे इंशाल्लाह आप लोग जो भी हुक्म दे रहेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अवामी एक्शन कमेटी के सरकर्दगान को गिलगित आमद पर खुशामदीद करता हूँ, और उसके साथ हमारे बानी रहनुमा एहसान साहब को सलाम पेश करता हूँ कि आज उसने इस यहाँ मौजूदगी करके इस महफिल को चार चांद लगाए हैं। मैं दो तीन बातें इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि ये सब्सिडी का जो इशू है, आपको पता है हमारी ज़मीन जो चाइना को उन लोगों ने दी है, उसके मुकाबले में हमें पंजाब में ज़मीन दी है। ये पाकिस्तान की बात की थी, ज़मीन जो चाइना को दी उसने, हमारी ज़मीन अगर चाइना को दी है तो उसका अल्टरनेट हमें ज़मीन दी है, नहीं दी है तो उस ज़मीन का हिसाब बनता है। वो ज़मीन एक अवधि अजली एक चीज़ थी, उसके अल्टरनेट हमें अवधि और अवधि चीज़ चाहिए था, रेगुलर हमें मिलना चाहिए था, वो सब्सिडी की शक्ल में। क्या हमारी पानी का रियाल हमें मिलता है? इकतर में मतलब तुर्क समेत 13 देहात रात को मतलब वो सोए हुए थे, सुबह देखो तो इंडिया की फौज थी, पाकिस्तानी फौज वहाँ से निकल गई थी। वहाँ इकतर में तुर्क समेत 14 देहात दिए, क्या उनके मुकाबले में हमें जमीन दी गई है?
हमसे पूछ कर वो इंडिया को छोड़ा गया है। नहीं, ये आपस में मुका करके हमारी जमीन को देते रहे, हमारे वसाइल को देते रहे। ये जंग वसाइल की है, वो आपके वसाइल कब्जे में लेना चाहते हैं। जिस तरह हमारे भाई ने कहा मदनियात, हमारा एक इलाका है सिर्फ चिमर बकोर से अरबों रुपए परसों आपने सुना, यहाँ बथरेत नाला है उससे करोड़ों रुपए आपने सुना। हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, हमें इनकी हुक्मरानी की जरूरत नहीं है। हमें इख्तियार दे दे, हम अपना इलाका खुद संभाल सकते हैं। हमने पहले भी ये तजवीज़ पेश की थी कि तमाम इलाके की लीजें उस इलाके के यूनियन कौंसिल के जितने भी लोग होंगे, जितने भी मतलब कौमियतें होंगे, उनके नाम पर करो। तो हर मतलब कौम, हर वहाँ इलाके का बंदा जाकर अपने लिए इन्वेस्टर लाएगा और काम करेगा। हम आपको दे देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, हम आपको सब्सिडी दे देंगे। ये सब्सिडी कोई एहसान नहीं है। दूसरा मसला ये है कि हमारी ज़्यादा ज़मीन वहाँ करगिल में पड़ी हुई है, वहाँ सीज फायर लाइन है, ये बॉर्डर तो नहीं है, जंग का एरिया है। तो आज भी जंग हो सकता है इंडिया के साथ, या ये आपस में मतलब ये अपने बॉर्डरों में जंग नहीं करते हैं। ये जंग का शौक है तो करतारपुर में करके देखें, वाक़ा में करके देखें। ये जंग करते हैं हमारे एरिया में, क्यों? हमारे वसाइल लूट रहे हैं लोगों ने। ये जंग वसाइल लूटने के लिए ही किया जाता है।